بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آئے ہوئے تمام پولیس سروسز کے تمام آفیشلز کو سول سرونٹس کو یہاں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ جو حالات خیبر پختونخوا کے چل رہے ہیں وہ پورا پاکستان جانتا ہے۔ خیبر پختونخوا تقریباً پچھلے 21 سالوں سے بلکہ 4 دہائیوں سے مسلسل جنگ زدہ اور جو فورن انویژن ہے افغانستان میں، اور اس سے ڈائریکٹلی جو ہے امپیکٹ خیبر پختونخوا کی عوام پر اور یہاں کی گورننس پر، یہاں کی پولیس پر، یہاں کے سول سرونٹس پر، یہاں کی عوام پر پڑتا ہے۔ ابھی کے جو حالات ہیں، اسی تناظر میں میں نے آپ سب کو یہاں مدعو کیا ہے، کیونکہ جس طرح کی قربانی آپ پچھلی 21 سال سے دے رہے ہیں، خیبر پختونخوا کی عوام کو بھی آپ لوگوں پر فخر ہے اور پورے پاکستان کو آپ لوگوں پر فخر ہے۔ آپ نے پچھلے 21 سال سے، حالانکہ ہم یہ بھی جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ہماری پولیس کے پاس وہ وسائل نہیں تھے جو دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے ایک پولیس یا ایک فورس کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن جس دلیری، جس جوان مردی سے آپ لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے، تو آج بحیثیت وزیر اعلیٰ اور بحیثیت خیبر پختونخوا کا ایک عام شہری میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کل کا افسوسناک واقعہ جس میں ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے، ہمارا ایک اسسٹنٹ کمشنر شہید ہوا، آج بھی جے خان میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا جس میں ہمارے پولیس افسران شہید ہوئے۔ اس سے پہلے باجاوڑ میں بھی ہمارا ایک اے سی اور ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے۔ اسی طرح ہماری باقی سیکیورٹی فورسز، چاہے فوج ہے، چاہے ایف سی ہیں، چاہے باقی ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، سی ٹی ڈی ہے جو کاؤنٹر ٹیررزم کو ڈائریکٹلی ڈیل کرتی ہیں، ان سب نے جو ہے خیبر پختونخوا کے لیے اور پاکستان کے لیے بے انتہا قربانیاں دی ہیں اور ابھی بھی دیتے آ رہے ہیں۔ آج میں آپ سب کو یہاں پر یہ یقین دلاتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں امن بحال کرنے میں اور پھر امن بحال رکھنے میں حکومت خیبر پختونخوا سنجیدہ بھی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ پہاڑ کی طرح کڑا بھی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو سمجھنی ہوگی۔ پولیس اور ہمارے سول سرونٹس یہ ہمیشہ عوامی مفاد میں جو بہتر ہوتا ہے وہی کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ جن کا کام سیاست میں مداخلت نہیں ہوتا وہ سیاست میں مداخلت بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ جن کا کام انصاف دینا ہوتا ہے وہ انصاف بھی نہیں کرتے، کچھ لوگ جن کا کام ہوتا ہے کہ وہ عوامی مینڈیٹ کی حفاظت کرے وہ عوامی مینڈیٹ کی حفاظت بھی نہیں کر پاتے، تو اس سے چیزیں بگڑتی ہے۔ لیکن آج میں یہاں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میری طرف سے یا میری حکومت کی طرف سے آپ کے کسی بھی کام میں سیاسی مداخلت نہیں ہوگی، لیکن میں نے پھر جو ہے آپ لوگوں سے رزلٹ مانگنا ہے، آپ لوگوں نے مجھے پھر رزلٹ دینا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں پر امن لانا اور امن برقرار رکھنا یہ ہم سب کی اولین ترجیح ہے۔ تو اس زمرے میں اگر کوئی آپ کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اوپر سے یا نیچے سے یا آگے سے یا دائیں سے یا بائیں سے کال کرتا ہے کہ آپ فلانے کو اٹھا لے اور فلانے کو جو ہے 3 MPO میں ڈال دے، 16 MPO میں ڈال دے، دفعہ 144 لگا دے، آپ لوگوں نے جو ہے اپنے امن پر فوکس رکھنا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ میرا کام یہ نہیں ہے، میرا کام ہے یہاں کی عوام کو ریلیف دینا اور یہاں کی عوام کے لیے جو ہے منصوبہ سازی اور فیصلہ سازی کرنا۔ دوسری بات، ہم اپنی پولیس کو، چونکہ ہماری پولیس
के पास वो वसाइल नहीं थे जो होने चाहिए, तो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा आपको बेहतरीन मॉडर्न वेपनाइजेशन इंशाल्लाह देने जा रही है। इस हवाले से मेरी IG साहब से 3 दफ़ा मुलाकात हो चुकी है और मैं इनको कहता हूँ कि वो अल्लामा इकबाल साहब का शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो आप लोगों ने खुदी की जो आला मिसाल कायम की है इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ने में, तो हम आपको खिराज तहसीन इस अंदाज में पेश करते हैं कि हम आपसे पूछते हैं कि आप हमें बताएं आपको क्या चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा आपको वो देगी। इसके साथ साथ जब हम बोलते हैं कि 313 का मुकाबला जब 1000 से था, तो 313 का ईमान तो बहुत मजबूत था, हम उनकी पैरों की खाक के बराबर भी नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी वो ईमान का जज्बा होता है। आप लोगों ने अपने आप में ईमान का जज्बा पैदा करना है, क्योंकि असले में, बंदूकों में, टैंकों में, जहाज़ों में हो सकता है पूरी दुनिया हमसे आगे हो, लेकिन ईमान का जज्बा किसी किसी के पास होता है। अगर आज हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिसालें देते हैं, खालिद बिन वलीद की मिसालें देते हैं, तारिक बिन ज़ियाद की मिसालें देते हैं, मोहम्मद बिन कासिम की मिसालें देते हैं, तो वो भी हम हमारी तरह इंसान थे, लेकिन उनमें ईमान का जज्बा था। अगर आप लोग अल्लाह में यकीन रखते हैं कि मुझे ज़िंदगी और मौत देने वाला अल्लाह है, मुझे रिज़्क देने वाला मेरा अल्लाह है, मुझे इज़्ज़त ज़िल्लत देने वाला मेरा अल्लाह है, और आप फिर ख़ास उसकी रज़ा के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने सूबे की आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए लड़ेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जीत आप लोगों की होगी। ईमान के साथ, इत्तेहाद के साथ, इंसाफ के साथ हम सब ने जो है आगे बढ़ना है। अभी चूंकि नई टीम आ रही है, कुछ पोस्टिंग ट्रांसफर्स हो रही हैं, ये गवर्नमेंट इदारों का रिवाज रहा है, लेकिन इसमें मैं आप सबको एक बात बता दूं कि आप में से कोई बंदा भी जिसकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र हो चुकी है, वो ये नहीं कह सकता कि मैंने कोई सिफारिश करवाई है, मेरे दर पर किसी ने हाजिरी नहीं लगाई। बहुत से पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स हुए हैं, वो एक बंदा भी ये साबित नहीं कर सकता कि वो मैंने सिफारिश पर कराई है। ये आप लोगों का हक था, आप लोग मेरिट पर हैं, आप लोग डिलीवर कर रहे हैं, तो आप लोगों को जो है पोस्ट मिल रही है, और ये जो है हमारी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस की रिवायत भी है। लेकिन आप अगर मेरिट पर आए हैं, आपको मेरिट पर पोस्टिंग ट्रांसफर्स मिली हैं, तो आज मैं भी आपसे ये तवक्को रखता हूं कि आप लोगों ने भी मेरिट और ट्रांसपेरेंसी करनी है। इमरान खान की विजन के मुताबिक हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा मेरिट की बालादस्ती लाएगी, इंशाअल्लाह ताला ट्रांसपेरेंसी लाएगी, और सबसे बढ़कर करप्शन पर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर आपके सामने कोई है, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे MP हो, चाहे MNA हो, सिविल सर्वेंट्स में हो या पुलिस में हो, जिसने करप्शन की है, मेरा दरवाज़ा 24/7 आपके लिए खुला है। आप लोगों ने जो है उसके सबूत लाने हैं, कार्रवाई मैंने करनी है, क्योंकि ये हमारे सूबे का नासूर है, इसको हरगिज़ जो है कोई माफ़ी नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, और इसमें मैं आप लोगों के शाना बशाना खड़ा रहूँगा। जिस तरह मैं कहता हूँ कि मेरी आपके लिए 24/7 ओपन डोर पॉलिसी होगी, मैं आपसे भी ये तवक्को रखता हूँ, क्योंकि हम सब आवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं, आप भी लेते हैं और अभी जो है मैं भी लेता हूँ, तो हमने उनके लिए भी ओपन डोर पॉलिसी रखनी है। हमने अवामी मफादात को सबसे बालातर रखना है, उस पर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर कोई DI खान से, टांग से, कोहिस्तान से, चतराल से, बाजावर से यहाँ पर पेशावर में आता है और अपना दुख दर्द आप लोगों को सुनाने आता है, और आप ऑफिस में नहीं होते या आपके ऑफिस बंद होती हैं, तो आप ज़रा सोचें कि उस बेचारे पर क्या गुजरी होगी। इसमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो यहाँ तो आ जाते हैं, लेकिन उनके पास वापस जाने का किराया भी नहीं होता। तो हमने उन लोगों के लिए जो है अपनी सर्विस डिलीवरी बेहतरीन बनानी है, और मैं आपसे तवक्को रखता हूँ कि आप लोगों ने भी इंशाअल्लाह ताला इस तरह ही करना है। हम
चीफ सेक्रेटरी साहब, IGP साहब, हमारी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर एक मीटिंग हो चुकी है। गुड गवर्नेंस के लिए जो है हम TORs भी बना रहे हैं और ये अब बिल्कुल बल्कि बन गए हैं और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी बन गए हैं। इसके बाद आप सबको, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, जो हमारे पुलिस सर्विसेज के हैं, उन तमाम के लिए ये है कि आप लोग जो है परफॉर्मेंस से ही आगे आएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हर अच्छे काम में खड़े होंगे और आप हर बुरे काम में हमें अपने सामने पाएंगे और इसका जो है हिसाब किताब अक्रॉस द बोर्ड होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आखिर में एक दफ़ा फिर अपने शोहदा जो हमारी खातिर, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की खातिर, पाकिस्तान की खातिर कुर्बान हो चुके हैं, उनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो सिविल सर्वेंट्स जो अभी शहीद हो रहे हैं, तो इसके लिए भी एक जामे पॉलिसी हम बनाएंगे कि उनको शहीद होने के बाद उनकी अहलिया को, उनके बच्चों को हम अकेला ना छोड़ें और उनके लिए एक पॉलिसी बनाएं ताकि वो हमारी हुकूमत का हिस्सा रहें। तो उसमें हम जो भी कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला उनके लिए हम पैकेजेस भी लाएंगे और हुकूमत की तरफ से उनके लिए ऑफ़र्स भी लेके आएंगे। आप सब तमाम दोस्तों का, पुलिस सर्विसेज का, सिविल सर्वेंट्स का और बाकी हमारे यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग।